हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईएसआर एकेडमी। आज के मॉड्यूल में हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन से आगे प्रोसीड करेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। Students, in the last class, we talked about the process of DNA replication as to how the DNA replicates, what are the events in which the replication process occurs, what are the different types of enzymes, and we also understood how the DNA is made or replicated, assuming and also understanding the semi-conservative nature of the DNA replication stated by Michelson and Stahl. आज के लेक्चर में हम लोग उसी डीएनए का एक दूसरा मेथड पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड एज डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। नाउ स्टूडेंट्स, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन एग्जैक्टली क्या है और क्यों चाहिए ये जरा समझना। अभी आने वाले मॉड्यूल्स बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड रहेंगे बिकॉज इन अ वे दीज मॉड्यूल्स और दीज टॉपिक्स आर very much close to each other and have some similar goal or common goal. Okay, now what is that goal? We know that our body is made up of protein and abundance of protein. अभी ये जो हमारे बॉडी में जो प्रोटीन है, आपके पास इसके दो तरीके हैं जिसके कारण आप प्रोटीन को एक तो आपके बॉडी में यूटिलाइज कर सकते हैं। वन, यू कैन सोर्स इट फ्रॉम आउटसाइड थ्रू फूड। ओके, आप खाना खा के कंज्यूम कर सकते हैं उसको। सेकेंड, योर बॉडी ऑल्सो हैज इनहेरेंट मैकेनिज्म बाई विच योर बॉडी कैन मेक द प्रोटीन। नाउ व्हाई डू यू वांट टू मेक द प्रोटीन? Protein synthesis is very, very important for all the day-to-day activities of a cell. It is also required for process of enzyme synthesis, which is making of enzymes. It is also required for synthesis of different types of protein molecules. And all of these things in a cell are actually governed by the molecule called as protein. So our body has two options to really fulfill that need. One can be going through the process of sourcing it from outside, that is the food that you consume. And second is what we can make it from our own needs and our own body, that is through the cell, through the process of DNA transcription followed by DNA translation. Now, how do we really go about it? Now, before we make the protein, you'll have to understand that protein is produced from a fundamental smaller units called as amino acids. Now, these amino acids needs to be synthesized before you can actually make the protein. So therefore, if you want to make the amino acids, what you have to really do? You'll have to do two major steps that we're going to understand today. One is DNA transcription, and the second, which is an immediate consecutive step, is what is called as DNA translation. Once these two steps and once these two procedures are completed, you actually get an amino acid. And once you have an amino acid, you can join many of those to make a single protein and further complicated by the twists and turns and folds to make different kinds of enzymes. Now, before we really proceed forward, उधर तक जाने से पहले ये समझते हैं कि how do we really talk about and start the process of transcription. तो students, transcription start करने से पहले मैं उसको डिफाइन करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि व्हाट वी आर रियली टॉकिंग अबाउट। तो ये एक टाइप का प्रोसेस है, अ प्रोसेस इन विच a segment, okay, a segment of DNA, okay, is transcribed into mRNA. Now, many of you students must be knowing what is mRNA, but for those who don't know, I will really mention it here that mRNA is what we call as messenger RNA. सर, इसका फंक्शन क्या है मैसेंजर आरएनए का? मैसेंजर आरएनए इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन from the DNA to the later part of the cell, which is called as ribosomes. Now you should understand that this process of protein synthesis is actually split into two parts. Okay, so सबसे पहला पार्ट जो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन समझते तो सही बात है, अपन जानते हैं, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। और ट्रांसक्रिप्शन एक बहुत ही फंडामेंटल यूनिट में आता है एंड दैट fundamental unit is called as the central dogma of protein synthesis. Students, what do we mean by central dogma of protein synthesis? चलो ये जरा थोड़ा सा जान लेते हैं। कुछ नहीं है, it's really very, very simple, which means that you have a DNA, okay? A segment of a DNA can be copied into
a type of a molecule called as an mRNA. This mRNA can then be converted into a molecule called as protein. ठीक है, प्रोटीन. नाउ ये जो दो अलग अलग प्रोसेस में आपका ये जो चीज हुआ है, ठीक है, मतलब आपका ये जो डीएनए से एमआरएनए का कन्वर्जन है, इसको आप कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन. ओके, इसको आप कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन. एमआरएनए से जब आप प्रोटीन को कन्वर्ट कर देते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन. ओके, सो आपके पास ये जो ट्रांसक्रिप्शन है और जो ट्रांसलेशन है, ये दोनों ऑर्गेनिजम्स में, आई मीन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में भी और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में भी, दोनों केसेस में सिमिलर है. दोनों केसेस में सिमिलर है. इसकी वजह से आप उसको क्या बोलते हो? आप उसको सेंट्रल डॉगमा बोलते हो, विच मीन्स दैट beat any kind of organism, it the process of transcription or translation would remain same no matter which organism we are really talking about, and we should understand these two procedures in greater detail. Now this process, as what we call it here as a central dogma, in which transcription is there, but also you have something called as one mRNA which can be then converted back into the DNA, but this time it is not a DNA, it is a cDNA. What does cDNA really stands for, students? cDNA meaning complementary DNA. So this process of converting the mRNA back into the DNA is what is called as reverse transcription. Now, reverse transcription was chiefly observed in case of viruses. Specifically, it was observed in viruses. So what you do is you have an mRNA converts into a cDNA. The process is reverse transcription. An enzyme which we require here is called as, I will just write it down. The enzyme that we require here is called as reverse transcriptase. The process is reverse transcriptase. The enzyme is reverse transcriptase. So this is one process which you should be knowing, which is very very important. And the second process is this. ठीक है, हम अभी फिलहाल के लिए ये समझते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन एग्जैक्टली हम कैसे करने वाले हैं. नाउ अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, ओके, जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, दिस ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस occurs in G1 and G2 phases of the cell cycle. Okay, G1 and G2 phases of the cell cycle. Now I am guessing that you must be knowing what is cell cycle. ठीक है, सेल साइकिल एक छोटा सा टॉपिक था 11th स्टैंडर्ड के एक चैप्टर में जिसका नाम सेल डिविजन था. वहां पे आपने ये पढ़ा था कि आपका जो सेल डिवाइड होता है उसके पहले, डिवीजन के पहले सेल को तैयारी करनी पड़ती है. एंड दैट प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन वाज व्हाट वाज कॉल्ड अ सेल साइकिल, इन व्हिच यू हैड 4 डिफरेंट फेजेस, ऑफ व्हिच द वेरी फर्स्ट वाज G1, द सेकंड वाज S, द थर्ड वाज G2 एंड द फोर्थ वाज M. सो इसमें का जो G1 है और जो G2 है, इसके अंदर आपको ट्रांसक्रिप्शन होते हुए दिख सकता है. ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन मेरे को करना किसका है? ट्रांसक्रिप्शन मुझे करना किसके? ट्रांसक्रिप्शन जो है वो हमको करना है डीएनए का, बट अभी क्वेश्चन ये है कि ये जो डीएनए अपना है, डीएनए इज ऑल्सो प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स. ओके, ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो मस्ट अग्री ऑन दैट. एंड डीएनए इज ऑल्सो प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स. तो सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? नाउ talking about the differences, prokaryotic organisms में DNA is present in a form of a structure called as a nucleoid. Okay, nucleoid जो कि साइटोप्लाज्म में ही होता है, because prokaryotic organisms do not have nucleus. ठीक है, and when we talk about eukaryotic organisms में जो genetic material DNA है, that is present in a structure called as nucleus. ओके, ये एक मेजर डिफरेंस डिफाइन हो जाता है. एंड स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोइड हो चाहे न्यूक्लियस हो, वट एवर इट इज, जनरली आपको ये समझ के लेना है कि भाई प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक दोनों ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियोइड हो या न्यूक्लियस हो, डीएनए दोनों में है, ट्रांसक्रिप्शन दोनों में होगा.
एंड दोनों में ट्रांसक्रिप्शन जब प्रोसेस हो रहा है तो हम लोग प्रोकैरियोटिक का भी कुछ कुछ जानेंगे, थोड़ा बहुत पार्ट, और हम लोग यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन भी जानेंगे. Now, be it any kind of transcription, ठीक है, any kind of transcription, transcription generally involves 3 steps. Okay, transcription जो है इसके आपको 3 steps देखने को मिलते हैं. 3 steps देखने को मिलते हैं. Now, students, what are these 3 steps? ये 3 steps कौन से हैं? सबसे पहला step आता है is what is called as initiation. Initiation, okay. Second step is what is called as elongation. Okay, elongation. And third is what is called as termination. Okay, so you have initiation, you have elongation and you have termination. ये तीनों प्रोसेस, ये जो तीनों स्टेप्स है, ये आपको प्रोकैरियोटिक में भी मिलेंगे, आपको ये यूकैरियोटिक में भी कॉमन मिलेंगे. ठीक है, तो अभी जाने से पहले आगे, आई होप ये देखिए जरा, स्क्रीन देखिए जरा, आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या क्या अभी तक डिस्कस कर लिया है. वी टॉक्ड अबाउट द डीएनए ट्रांसक्रिप्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन, एंड अभी अपन क्विकली आगे जाते हैं एंड अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, तो चलिए अभी अपन मुड़ते हैं आगे एंड समझते हैं द process of transcription. Okay, students, so we will quickly go on to this. Now, any kind of a organismic transcription, आपके पास you have something called as a transcription unit. Okay, आपके पास एक structure होता है जिसको आप बोलते हो transcription unit. Transcription unit. Now, students, what exactly is a transcription unit? Transcription unit होता क्या है? Transcription unit contains 3 components. Okay, इसके 3 components होते हैं. 3 components होते हैं. कौन से? सबसे पहला होता है जिसको आप बोलते हो प्रमोटर. ओके, सबसे पहला होता है जिसको आप प्रमोटर बोलते हो. सेकेंड होता है जिसको आप बोलते हो स्ट्रक्चरल जीन. And third is what is called as terminator. ठीक है, terminator. ये तीनों आपको क्या बता रहे हैं कि तीनों ये यूनिट्स है, कंपोनेंट्स है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के, और जिसको आप कलेक्टिवली आप क्या बोलते हो? आप कलेक्टिवली इसको बोलते हो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. कैसे दिखते हैं ये? ओके, हाउ डज इट रियली लुक? सो वी कैन हैव अ क्विक ग्लैंस ओवर इट. सो यू हैव, अभी मैं आपको वही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब वही चीज़ आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ जो कि आपके टेक्स्ट बुक में है. ठीक है, सो वी आर ओनली फोकस्ड एज फार एज अ टेक्स्ट बुक्स ऑफ स्टेट बोर्ड इज कंसर्न. सो यू हैव दिस एंड देन यू हैव समथिंग लाइक दिस. इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको आप बोलते हो प्रमोटर. ठीक है, ये वाला पार्ट होता है जिसको आप बोलते हो स्ट्रक्चरल जीन. ओके, एंड ये वाला जो पार्ट है, इट इज कॉल्ड एज, यस एब्सोल्युटली राइट, इट इज कॉल्ड एज टर्मिनेटर. इसको आप कहते हैं, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. इसको आप कहते हो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है आपको ये एक्सप्लेन करने का कोशिश किया. अभी जाते हैं प्रोसेस में जाते हैं एग्जैक्टली होता क्या है हमारे पास. अभी मैंने स्टार्टिंग में जब तुमको बताया तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ट्रांसक्रिप्शन हम डीएनए कर रहे हैं. अभी आपके पास जो डीएनए है, सी जरा समझिए इस बात को, आपके पास जो डीएनए है वो बहुत ज्यादा बड़ा है. ओके, ये बहुत ज्यादा बड़ा डीएनए है. ठीक है, और मैं पूरे डीएनए का बिल्कुल भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना चाह रहा. तो मतलब एक डीएनए चालू होता है 3 प्राइम से, दूसरा डीएनए चालू खत्म होगा 5 प्राइम पे, दूसरे एंड पे. इधर से अपन चालू करेंगे 5 प्राइम और यहाँ पे खत्म करेंगे 3 प्राइम. ये पूरा डीएनए है. बट क्या मुझे पूरे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन करना है? द आंसर इज नो. आई डोंट वांट टू डू द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एंटायर डीएनए. आई हैव टू पिक अप वन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रेजेंट इन द डीएनए.
ठीक है, तो एक डीएनए के अंदर एक छोटा सा ट्रांसक्रिप्शन का यूनिट मुझे पिकअप करना है, एंड वो छोटा सा ट्रांसक्रिप्शन का जो यूनिट रहता है दैट कैन बी प्रेजेंट एनीवेयर। ठीक है, अभी मैं फॉर ईज ऑफ कन्वीनियंस मैं मान के चल रहा हूँ कि इधर से और मान लो इधर तक मेरा ये इतना बड़ा देयर इज वन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये मेरा एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ऐसा मान के चल रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बिफोर आई रियली टॉक अबाउट, बिकॉज मैंने प्रीवियस वाले स्लाइड में देखिए ये बताया था आपको कि 3 स्टेप्स है, इनिशिएशन है, इलोंगेशन है, टर्मिनेशन है। तो ये तीनों स्टेप्स करने से पहले मुझे ये तो करना पड़ेगा, देखो रेप्लिकेशन में भी आपने यही किया था, डीएनए को आप डायरेक्ट रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे हो, देन व्हाट डू यू रियली डू, यू हैव टू फर्स्ट अनवाइंड इट, open it up, stabilize the bubble, the structure which is opened up, the DNA which is opened up, you have to stabilize that, and after that you carry out the process. Similar has to be done with regards to transcription also. So now transcription में भी सबसे पहला आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना DNA को unwind करना पड़ेगा, which means transcription to occur. okay, अगर आप चाहते हो ट्रांसक्रिप्शन हो जाए तो सबसे पहला आपको क्या करना पड़ेगा, डीएनए को अनवाइंड करना पड़ेगा। बट क्या मैं पूरा डीएनए अनवाइंड कर रहा हूं, द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, मैं डीएनए को पूरा अनवाइंड कर ही नहीं रहा हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने स्पेसिफिक रीजन, ओके, डीएनए को अनवाइंड किया, बट यू शुड नोट दैट ओनली स्पेसिफिक रीजन, ओके, स्पेसिफिक रीजन इज ओपनड अप, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक हिस्सा खुला है, और ये स्पेसिफिक हिस्सा आप खोलने के बाद आपको डीएनए जो है विजुअली कुछ इस तरीके से दिख सकता है, जरा देखिए। ओके, isn't it looking similar to your replication thing? Absolutely it is. So एक जगह पे रहेगा, मान लो 3 प्राइम है, दूसरे जगह पे 5 प्राइम है, यहाँ पे 3 प्राइम है, यहाँ पे 5 प्राइम है। ठीक है, तो नाउ यू हैव अ सेंटर्ड पोजीशन। अभी अपन बात करते हैं, अभी एक बार आपका डीएनए ओपन हो गया, सी हाउ विल योर एंजाइम रियली नो दैट, देखो डीएनए रेप्लिकेशन में भी आपको एंजाइम चाहिए था ना, बराबर है, सो ट्रांसक्रिप्शन में भी डेफिनेटली एंजाइम लगेगा, बट उस एंजाइम को ये कैसे समझेगा कि मुझे मान लो कि पूरा डीएनए है, तो पूरे डीएनए को थोड़ी ना मुझे ट्रांसक्राइब करना है, आई हैव टू पिक अप वन सेगमेंट ऑफ इट, राइट। सो एक सेगमेंट पे आकर आरएनए पॉलीमरेज वहाँ पे बैठेगा, आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है, या कि इधर बैठेगा, फिर वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा, फिर वो प्रोसेस को फॉरवर्ड करेगा, ये उसको कैसे समझेगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो हाउ विल यू रियली डू इट? Now, in order to initiate the process, okay, I'm writing something, pay attention. In order to initiate the process को initiate करने के लिए you require what is called as initiation factors. You require what is called as initiation factors. Now, initiation factors जो होते हैं organism में, it is called as sigma. तो मतलब अगर आपके पास सिग्मा है तो फिर ट्रांसक्रिप्शन को आप प्रोसीड करवा सकते हो। ठीक है, तो मान लो मेरा ये वाला पूरा पार्ट इधर से इधर तक स्ट्रक्चरल जीन का है ना, तो कैन आई से स्ट्रक्चरल जीन, जैसे कि मैंने पहले बताया था, आपका जो स्ट्रक्चरल जीन है उसके अपस्ट्रीम, स्टूडेंट्स अपस्ट्रीम का मतलब है उसके आगे स्ट्रक्चरल जीन के अपस्ट्रीम में यू हैड व्हाट इज कॉल्ड एज द प्रमोटर। ठीक है, आप उसको प्रमोटर बोल रहे थे। एंड स्ट्रक्चरल जीन के डाउनस्ट्रीम में यू हैड व्हाट इज कॉल्ड एज टर्मिनेटर। ठीक है, टर्मिनेटर। सो मेरे को क्या करना है, मेरे को वो एक एंजाइम लगेगा, ये एंजाइम जो रहेगा, this enzyme, whatever it is called as of now, this enzyme will bind the promoter region. Okay, this enzyme is going to bind the promoter region of structural gene.
ओके वो कहाँ पे बाइंड करेगा स्टूडेंट्स? इट इज गोइंग टू बाइंड टू द प्रमोटर रीजन ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन विच इज अपस्ट्रीम, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या था, जरा याद करेंगे। डायरेक्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या था? नया डीएनए कौन से डायरेक्शन में बनता है? पॉज करिए वीडियो, देखिए जरा समझ में आ रहा है क्या? यस एब्सोल्युटली राइट, कि डायरेक्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम था। सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। डायरेक्शन ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, okay, direction of DNA transcription is 5 प्राइम से 3 प्राइम, एग्जैक्टली रेप्लिकेशन जैसा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन का भी डायरेक्शन वही रहेगा, विच मीन्स यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट एक आ गया टेम्पलेट का और नॉन टेम्पलेट का, इजंट इट? सो मतलब क्या 5 प्राइम टू 3 प्राइम का अगर मुझे mRNA चाहिए तो फिर मुझे क्या ना इसे डीएनए 3 प्राइम टू 5 प्राइम का लगेगा, ऑब्वियसली सो, विच मीन्स अभी इसको मैं, चलो वी कैन ड्रॉ इट अगेन। सो मान लो अभी मैं उतना सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ओके ऐसा है। मान लीजिए एक यहाँ पे, ओके आई कैन जस्ट एक अच्छे से जरा बड़ा डायग्राम बनाता हूँ तो ताकि आपको बेटर तरीके से समझे। सो यू हैव, ठीक है, सो ये आपका हो गया, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे है 3 प्राइम, यहाँ पे है 5 प्राइम, यहाँ पे है 5 प्राइम, यहाँ पे है 3 प्राइम, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना, मेरे को एक एंजाइम लगेगा, एंजाइम भाई क्या करेगा, एंजाइम जो है वो प्रमोटर को बाइंड करेगा। पिछले वाले स्लाइड में ही मैंने ये एक्सप्लेन किया है, एंजाइम जो है एंजाइम वो प्रमोटर को बाइंड करता है। नाउ समझना, एंजाइम का नाम, द नेम ऑफ द एंजाइम इज, यस, RNA polymerase, but there is one thing which I want to highlight here. Can I say this RNA polymerase is dependent on DNA for its work or action, कि DNA पे डिपेंडेंट है वो, इसके वजह से इसका पूरा नाम क्या पड़ जाता है पता है? इसका पूरा नाम इज DNA डिपेंडेंट RNA polymerase, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, बिकॉज वो अपने प्रोसेस को करने के लिए डीएनए पे डिपेंडेंट है, इसकी वजह से आप उसको बोलते हो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब मैंने क्या करना है, ये जो अभी के लिए तो वी आर जस्ट राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट विच इज द आरएनए पॉल, इसको ऐसे शॉर्ट में आप लिखते हो आरएनए पॉल, ठीक है। ये जो आरएनए पॉल है या आरएनए पॉलीमरेज है, इट इज गोइंग टू बाइंड to the promoter, बट कौन से डीएनए का मुझे एक्चुअली में ट्रांसक्रिप्शन करना है, ये भी तो जानना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये भी तो जानना पड़ेगा। तो कौन से डीएनए का मैं ट्रांसक्रिप्शन करूं, अभी तुमको पिछले वाले स्लाइड में बताया, जाइए जरा पीछे जाइए, देखिए जरा यहाँ पे मैंने क्या बताया कि आपको जो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन है वो आपको 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। तो अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम का डीएनए चाहिए, mRNA चाहिए, तो कैन आई से कि वो उसको आरएनए पॉलीमरेज को टेम्पलेट जो लगेगा, टेम्पलेट मतलब जिसको कॉपी करना है, टेम्पलेट जो लगेगा इट विल बी फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये टेम्पलेट किसका होगा, दिस टेम्पलेट वुड बी ऑफ डीएनए, ठीक। तो मान के चलो ऊपर का 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, जिसके ऊपर कुछ नाइट्रोजनस बेसिस है, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। अभी फॉर ईज ऑफ कन्वीनियंस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल ATGC, इसका ऑपोजिट आता है TACG, फिर वापस TACG, वापस TACG। तो ये आपका इतना सीक्वेंस है, इसका ऊपर वाला जो सीक्वेंस है वो मुझे क्या करना है, वो मुझे ट्रांसक्राइब करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये देखो, कैन यू सी दिस इज आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के 3 प्राइम टू 5 प्राइम के टेम्पलेट पे बैठा। Now this is the process of initiation, ठीक है।
ये जो मैंने अभी बताया, दिस विल बी योर इनिशिएशन, दिस विल बी योर इनिशिएशन। इनिशिएशन में मैंने क्या किया, इनिशिएशन में स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, एब्सोल्युटली मैंने जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज है, इट बाइंड्स टू द promoter, okay, it binds to the promoter of the transcription unit at 3' end of टेम्पलेट डीएनए, ठीक है, आपका जो डीएनए का टेम्पलेट है उसके 3' एंड पे वो बाइंड करता है, इसको आप बोलेंगे इनिशिएशन। यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या लगा, एंजाइम का नाम क्या लगा, वेरी गुड, एंजाइम इज आरएनए पॉलीमरेज। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये इनिशिएशन आपने किया, अभी इनिशिएशन के बाद उधर बैठा थोड़ी रहेगा, वो इनिशिएशन के बाद बैठा थोड़ी रहेगा, तो अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को करना पड़ेगा नेक्स्ट प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज इलोंगेशन। elongation. Now students, what is elongation exactly? Elongation मतलब क्या, elongation मतलब क्या कि तुम्हारा जो आरएनए पॉलीमरेज रहेगा, ओके, आरएनए पॉलीमरेज रहेगा, बट इट विल ऐड complementary bases, okay, to the टेम्पलेट डीएनए, मतलब टेम्पलेट डीएनए का सीक्वेंस देखकर, टेम्पलेट डीएनए का सीक्वेंस देखेगा और उसके हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ऐड करेगा। बस इधर यहाँ एक चीज याद रखना है, एक चीज याद रखना है कि आरएनए, बिकॉज आप बना क्या रहे हो, आप बना क्या रहे हो, एमआरएनए बना रहे हो ना, तो एमआरएनए के अंदर जो ए रहता है वो यू के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, और जो जी रहता है वो सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। डीएनए में क्या था, डीएनए में ए जो था वो टी के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, जी जो है वो सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। इतना चीजें प्लीज याद रखना, ठीक है। तो अभी क्या करना है, सेम चीज यहाँ पे, बट अभी मैं उस स्ट्रैंड को ना स्ट्रेट कर दे रहा हूँ, स्ट्रेट कर रहा हूँ। तो मान लो ये दिस इज योर 3', यहाँ से है 5', तो यहाँ पे आपका है 5', यहाँ पे है यू हैव 3', ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे है ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए टी जी सी, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, टी ए सी जी, टी ए सी जी, टी ए सी जी, बराबर कॉम्प्लीमेंट्री ऐड किया मैंने। इधर इधर क्या लगवा दिया था, इधर मैंने प्रमोटर के सीक्वेंस पे 3' पे आई हैव बाउंड आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही बाइंड करना भाई शुरू करेगा, वैसे ही वो एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर यहाँ पे ऐड करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर ऐड करेगा। तो वैसे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर जब ऐड करेगा तो देयर विल बी समथिंग व्हिच विल बी फॉर्म्ड हियर। नाउ लेट्स टेक द सीक्वेंस वेरी क्विकली हियर। व्हाट विल बी द सीक्वेंस हियर? सो ए का, एज आई सेड, इट विल बी यू, टी का ए, जी का सी का जी, ए का यू, ए सी जी, यू ए सी जी। डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन बताइए। दिस इज योर 5', दिस इज योर 3'। देखो स्टूडेंट्स, ये समझ में आ रहा है क्या मैंने किया, क्या है, मैंने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स को इधर ऐड करवा दिया है। और ये जो आपका, अभी देखो, अभी देखो, मैं यहाँ पे कुछ हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो है आपका, दिस इज योर डीएनए, ठीक है, ये जो है आपका, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीएनए, दोनों डीएनए। बीच का क्या है, बीच का क्या है, ये बीच का जो है, दिस इज कॉल्ड एज रॉ और अनप्रोसेस्ड mRNA, ओके, रॉ और अनप्रोसेस्ड mRNA। मैं आपका ध्यान कहीं पे यहाँ पे जरा थोड़ा सा दिलाना चाहूंगा, इस प्रोसेस को आप इलोंगेशन बोले तो सही। लुक एट द सीक्वेंस ऑफ द mRNA। जो mRNA बना है उसका जरा एक बार सीक्वेंस आप देखिए, आपको कुछ तो समझेगा कि इसका ये जो, इसका जो सीक्वेंस है ना, इसका जो सीक्वेंस है ना, द सीक्वेंस मैचेस, एक्सेप्ट फॉर द यू, द सीक्वेंस मैचेस with exact same number of nitrogenous bases with the DNA which is the non-template DNA. Because once you see here, while you see here, this is excuse me, this is जो है, ये जो है, this is your template DNA, isn't it? टेम्पलेट क्यों बोला था इसको? बिकॉज उसको ही देख के कॉपी किया है।
इसको बोला है नॉन टेम्पलेट। नाउ लुक एट द mRNA एंड लुक एट द नॉन टेम्पलेट, एक्सेप्ट यू बाकी पूरा सेम है। Because this mRNA matches with the non-template DNA, this non-template DNA, what you see here, is also called as the coding. It is also called as the coding strand. इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हो। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द सेंस स्ट्रैंड। ठीक है, आप इसको सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, आप इसको सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। अगर ये सेंस है तो ये क्या रहेगा, इट विल बी एन एंटी सेंस। ठीक है, ये इसको आप क्या बोलना है, दिस विल बी एन एंटी सेंस स्ट्रैंड। दिस विल बी एन एंटी सेंस स्ट्रैंड। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो आपका अभी जो वो जो अनप्रोसेस्ड mRNA बना है, ये जो अनप्रोसेस्ड, ठीक है, अनप्रोसेस्ड mRNA बना है, दिस अनप्रोसेस्ड mRNA इज एज ऑफ नाउ कॉल्ड एज HNRNA। HNRNA, ये HNRNA in other terms is also called as heterogeneous nuclear RNA, heterogeneous nuclear RNA। अभी तक इसको आप mRNA नहीं बोलेंगे, अभी तक mRNA इसको बोलना नहीं है। स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। कि मैंने आपको इनिशिएशन बता दिया, इनिशिएशन बता दिया। इनिशिएशन के बाद मैंने अभी आगे क्या प्रोसेस किया, मैंने अभी इलोंगेशन भी प्रोसेस कर दिया। इलोंगेशन के अंदर आपको कौन सा एंजाइम लगा था, आपको लगा था आरएनए पॉलीमरेज। ना ये जो बच्चों आरएनए पॉलीमरेज होता है, ये ना बहुत अलग अलग टाइप का है, अलग अलग टाइप का। यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेजेस बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आरएनए पॉलीमरेज 1, मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि जो आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है, दैट कैन ट्रांसक्राइब द आरएनए। ओके, जो आरएनए पॉलीमरेज 1 यूकैरियोट्स में, ठीक है, यूकैरियोट्स में, एक्सक्लूसिवली यूकैरियोट्स, ओके, एक्सक्लूसिवली जो आरएनए पॉल 1 है, इट कैन ट्रांसक्राइब, ओके, इट कैन ट्रांसक्राइब आरएनए। ठीक है, आपका जो आरएनए पॉल 2 है, आरएनए पॉल 2 है, इट कैन ट्रांसक्राइब mRNA, इट कैन ट्रांसक्राइब mRNA। सो आपके पास एक है आरएनए पॉल 1, दूसरा है आरएनए पॉल 2 विच कैन ट्रांसक्राइब mRNA, एंड नाउ यू हैव आरएनए पॉल 3, ठीक है, आरएनए पॉल 3 विच कैन ट्रांसक्राइब, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आरएनए पॉल 3, it can transcribe tRNA and snRNA। mRNA के साथ साथ अपन यहाँ पे hnRNA को भी ट्रांसक्राइब करते हैं। ठीक है, ये एक मैं रेकमेंड करूंगा कि आपको ये चीज याद रहे तो बहुत अच्छा रहेगा, कि जहाँ पे ये यूकैरियोटिक का जो कॉन्सेप्ट है, यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज का कॉन्सेप्ट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूकैरियोट्स में आपको 3 अलग अलग टाइप के आरएनए पॉलीमरेज मिल सकते हैं, पॉल 1, पॉल 2 एंड पॉल 3। ओके, ये पूरा इलोंगेशन का पार्ट रहा। तो अभी क्या जाएंगे भाई, अभी अपन जाएंगे तीसरे प्रोसेस पे। तीसरा प्रोसेस का नाम क्या है, तीसरा प्रोसेस का नाम है टर्मिनेशन। ओके, टर्मिनेशन मतलब क्या, टर्मिनेशन मतलब क्या, कुछ नहीं, एकदम ही इजी है। टर्मिनेशन मतलब वेयर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हॉल्ट्स। अब ये हॉल्ट हुआ क्यों, बिकॉज ये देखो ऐसा अचानक से तो हवा में होगा नहीं। सो ये जो हॉल्टिंग हुआ है, इट इज ड्यू टू व्हाट इज कॉल्ड एज termination factors। Okay, termination factor, one of the termination factor is rho। ओके, रो, तो रो की वजह से आपका प्रोसेस जो है वो रुक सकता है, विच मीन्स कि यहाँ पे अगर आपको सिग्मा था,
तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रो रहेगा जो प्रोसेस को वहां पे रोक देगा। ठीक है, सो इतना ये टर्मिनेशन प्रोसेस तो रुक गया। अभी देखो, अभी आपके पास जो आरएनए बना है ये एक टाइप का प्री मैच्योर फॉर्म है। ठीक है, अभी तक कंप्लीटली मैच्योर हुआ नहीं है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एमआरएनए को मुझे थोड़ा सा प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। अब ये प्रोसेसिंग कौन से सेंस का है इसको भी डिस्कस करते हैं। फिलहाल आप ये जानिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोसेसिंग। सो प्रोसेसिंग ऑफ mRNA। ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ mRNA। अभी प्रोसेसिंग मतलब कि यू आर एक्चुअली मॉडिफाइंग द न्यूली फॉर्म्ड mRNA नहीं बोलेंगे अपन इसको, न्यूली फॉर्म्ड hNRNA। इसको आप मॉडिफाई कर। अब इसको मॉडिफाई कैसे करेंगे, पहले मैं तुमको लॉजिक बताता हूँ भाई ये करना क्यों है, समझो जरा। ठीक है, ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है? बिकॉज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के पास आपको बिल्कुल भी ये नहीं मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियस नहीं है। सो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसक्रिप्शन जो है, ओके, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, इधर तक याद रखना। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो है, ओके, यूकैरियोटिक, जैसे अपन लोग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में आपका जो ट्रांसक्रिप्शन होगा, ओके, आपका जो ट्रांसक्रिप्शन होगा, दिस ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इनसाइड द न्यूक्लियस बिकॉज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैव न्यूक्लियस। नाउ यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब ये मॉडिफिकेशन जरूरी क्यों है? ये आपका जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक एमआरएनए, इधर लिख दे रहा हूं, इनका जो एमआरएनए है, इट रिक्वायर्स नो प्रोसेसिंग। क्यों ऐसा? बिकॉज प्रोकैरियोटिक एमआरएनए डू नॉट कंटेन non-coding sequence. They do not contain any kind of non-coding sequence. Students, what are non-coding sequences? Non-coding sequences in simple terms are called as introns. इनको आप क्या बोलते हो? इंट्रॉन्स। नाउ स्टूडेंट्स, इंट्रॉन्स को थोड़ा लॉजिक जानिए, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपके पास एक ही स्ट्रेच ऑफ एमआरएनए मिलता है कि जो कि डायरेक्टली ट्रांसलेशन में चला जाता है। कोई फैंसी थिंग नहीं, कोई ट्विस्ट एंड टर्न नहीं, नथिंग इज देयर। बट इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, बिकॉज ऑफ आर गिवन एवोल्यूशनरी लिंकेजेस wherein we have lost certain functions, we are not exactly similar to what we were say couple of thousands of years ago. We are not like that today. So how are we? We have evolved, we had adapted, we have certain kinds of characteristics which may not be there in those people who were our ancestors. So how do we really understand that? Now, in the process of understanding this, there were certain sequences present in the mRNA which were of no use over the period of time. So what happened? Gradually what happened? Those sequences needed to also be eliminated. Isn't it? ये sequence धीरे धीरे eliminate होंगे over a period of time. But today, those sequences do not make any protein, do not code for any amino acid, they do not make anything. And those sequences are only and only present in eukaryotic organisms. And those eukaryotic organisms having those non-coding sequences are called as introns. So ये इंट्रॉन्स को मैं जब ये एमआरएनए को पहले प्रोसीड करा दूं किधर ट्रांसलेशन में, उसके पहले मुझे उस इंट्रॉन्स को निकालना बहुत जरूरी है। वो इंट्रॉन्स को निकालने के प्रोसेस को प्रोसेसिंग बोलते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। उसका भी वजह दे दिया, बिकॉज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में इंट्रॉन्स है ही नहीं, तो प्रोसेसिंग किस बात का। विच मीन्स कि आपको एक्चुअली में प्रोसेसिंग किसका करना है? एक्चुअली में प्रोसेसिंग आपको जो करना है, ये जो प्रोसेसिंग करना है, this processing of hNRNA has to be done of only eukaryotic, और rather simple terms में आप ऐसा समझ लीजिए कि यूकैरियोट्स में ये आपको प्रोसेसिंग करना है। स्टूडेंट्स, ये प्रोसेसिंग जो है ये 3 स्टेप्स में बनता है। ये प्रोसेसिंग occurs in 3 steps.
3 steps. Number 1 is called as splicing. Second is called as capping. Third is called as tailing. ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना ये किन के अंदर हो रहा, ये किन के अंदर हो रहा है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है दिस ओनली एंड ओनली अकर्स इन यूकैरियोट्स, सिर्फ यूकैरियोट्स में ये होता है। ठीक है, तो अभी सबसे पहला जाते हैं, सबसे पहले स्टेप पे जाते हैं। सबसे पहला स्टेप आपका है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग स्प्लाइसिंग का मतलब होता है कटिंग। ओके, स्प्लाइसिंग का मतलब होता है कटिंग। कट क्या कर रहे हो, अभी जैसे कि मैंने बताया, you are actually removing non कोडिंग सीक्वेंसेस। आप क्या कर रहे हो, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को निकाल दे रहे हो। और इन नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को आप क्या बोलते हो, दीज नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस आर कॉल्ड एज इंट्रॉन्स। तो सर कोडिंग सीक्वेंसेस भी होंगे, यस एब्सोल्युटली, बता दो उसके बारे में भी, जरा होल्ड कीजिए। तो आपके पास मान लो मैं भी फिलहाल तो स्ट्रेट बना रहा हूँ और ओके, सो यू हैव ऐसा ऐसा रीजन रहेगा, इसका पोलैरिटी वुड बी 5 हियर 3 हियर। ठीक है, अभी ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, मान के चलते दिस इज आवर इंट्रॉन। ठीक है, और ये वाला जो दिख रहा है ये अपना कौन है, ये अपना एक्सॉन है। मुझे निकालना क्या है, मुझे इंट्रॉन्स को हटा देना है, मुझे इंट्रॉन्स को हटाना है। तो आई एम गोइंग टू रिमूव व्हाट, यस वी आर गोइंग टू remove introns, and once the introns are removed you'll use certain endonucleases and nucleases to cut it off. But apart from that, once you remove it off, what you're going to get, you will have a mRNA which will have polarity from 5 prime to 3 prime, but this time only exons. इस प्रोसेस को मैंने क्या बोला, इस प्रोसेस को मैंने बोला स्प्लाइसिंग, जहां पे आपने क्या किया, इंट्रॉन्स को हटा दिया है। ठीक, चलो अभी सेकंड प्रोसीजर क्या, सेकंड प्रोसीजर इज या वी कैन टेक कैपिंग। सेकंड प्रोसीजर इज कैपिंग। कैपिंग में करना क्या है, अभी आपके पास वो mRNA है, आपने क्या करना है, उसको आगे से कवर कर देना है। सो मान लो ये दिस इज योर 5 प्राइम एंड, दिस इज योर 3 प्राइम एंड। नाउ व्हाट यू डू इज यू कैन कवर द फ्रंट पार्ट, दिस फ्रंट पार्ट of the, what do you call, the mRNA with a specific type of a compound, okay, with a specific type of a compound. And this, the name of the compound is, just a second, this cap which is produced is of 5 prime methyl guanosine, 5 prime methyl guanosine triphosphate. ओके स्टूडेंट्स, किसका अपन ने उसको कैप डाला है, अपन ने डाला है 5 प्राइम मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का, वो एक ऊपर उसके 5 प्राइम एंड पे मैंने करवा दिया है। ठीक है, तीसरा प्रोसीजर क्या है, तीसरा प्रोसीजर इज टेलिंग। ना टेलिंग में क्या कर रहा हूं भाई, आपके पास अभी देखो, अभी आपके पास ये वाला आरएनए है ना, ये है, फिर आपने क्या करवा दिया, आपने इधर आगे एक ऐसा कैप लगा दिया है। ओके, आपने आगे कैप लगा दिया है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे लास्ट वाला जो पार्ट है ना, वहां पे आपने एक केमिकल लगा दिया विच इज ऑफ एडिनाइन रेसिड्यूज लाइक दिस। ओके, कैन आई से दिस विल बी योर 5 प्राइम, दिस विल बी योर 3 प्राइम। सो व्हाट आर यू डूइंग इज यू आर ट्राइंग टू एड, यू आर एडिंग मल्टीपल एडिनाइन रेसिड्यूज मतलब एडिनाइन के कंपाउंड्स। ठीक है, मल्टीपल एडिनाइन रेसिड्यूज। आप जब मल्टीपल एडिनाइन रेसिड्यूज को ऐड करते हैं, इस प्रोसेस का नाम है पॉली एडिनाइलेशन। इट इज कॉल्ड एज पॉली एडिनाइलेशन। ठीक है,
अब ये प्रोटेक्शन एक एक टाइप का प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है स्टूडेंट्स ये, बिकॉज, और ये मैंने बताया था सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, एंड इसके वजह से व्हेन वी टॉक अबाउट अ सेल ना, अभी देखो मैं आपको एक रफ बना के दिखाता हूँ। मान के चलो तुम्हारे पास एक सेल है, ओके, यहाँ पे है, एंड मान लो कि और एक है यहाँ पे, और तुम्हारे पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है ऐसा कि अभी तुम्हारा ये जो स्ट्रक्चर बना है, जरा ध्यान देना, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बना है मान लो ये ऐसा है, ठीक है, इसके यहाँ पे आपको मिलेगा एडेनाइन एडेनाइन एडेनाइन, यहाँ पे आपको मिलेगा वो कैप, ठीक, कैप, ये आपका रेडी है। ये मैं किसके अंदर बात कर रहा हूँ यार, ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में। अभी वो देखकर भी आपको पता चल जाना चाहिए बिकॉज मैंने न्यूक्लियस बनाया है, ठीक है, यूकैरियोट्स में हो रहा है। मैंने क्या करा, इसको बाहर निकलना है, इसको बाहर निकलने के लिए यहाँ पे ना, यहाँ पे जंक्शन पे, न्यूक्लियस के जंक्शन पे ना, देयर आर सर्टन रीजन्स हियर लाइक दिस, ओके, आई एम नॉट एबल टू इरेज दिस पार्ट, बट आप समझ लीजिए कि ये दो पिंक के बीच में देयर इज सर्टन रीजन, देयर इज सर्टन रीजन, ओके, तो इस वाले रीजन को आप बोलते हो न्यूक्लियर पोर। ये एक्चुअली एक ओपन स्पेस होता है, ठीक है, न्यूक्लियर पोर होता है। सो भाई ये क्या करेगा पता है, ये जो है ना, ये दिस विल कम आउट लाइक दिस, ओके, एंड देन इट विल कम टू द ऑर्गेनल विच इज कॉल्ड एज राइबोसोम, जिसको आप ट्रांसलेशन बोलते हो, बट वो बात का टॉपिक है ऐसा। सो ये जो इतना बड़ा जो प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस का हमारा अल्टीमेट एम क्या है, हमारा अल्टीमेट एम ये है कि हमको एक डीएनए का सीक्वेंस, जिसको आपने एक ट्रांसक्रिप्शन का यूनिट बना, तो टेक्निकली वो जीन ही है, जीन का इंफॉर्मेशन मैंने एक आरएनए में दिया, वो आरएनए अभी आएगा राइबोसोम में वो एक प्रोसेस करेगा जिसको आप बोलते हो ट्रांसलेशन, एंड ट्रांसलेशन के बाद आपको मिलेगा अमाइनो एसिड। बोलने का मतलब जरा समझिए स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि डीएनए खुद प्रोटीन सिंथेसिस में डायरेक्ट बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बट व्हाट इज डीएनए डूइंग, डीएनए इज डायरेक्टिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स via mRNA, and that is very very important for you guys to understand. And I hope कि आपको ये प्रोसेस पूरा समझा है, बिकॉज ये बहुत जरूरी है बिफोर यू एक्चुअली मूव एंड जंप ऑन टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। एंड ट्रांसलेशन के पहले एक छोटा सा पार्ट बच जाता है विच इज कॉल्ड ए जेनेटिक कोड, विच वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट। बट ये पूरे मॉड्यूल में मैंने सिर्फ और सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन कवर किया। इफ एट ऑल यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स, please go back to the video, please look at it once again, get your doubts cleared, pause the video, understand the process, read the textbook. You'll be in better position to really write the answer in your exams. And still, if you're left with any kind of doubts, please put them down in the comment section. We will reply you when we see it as early as possible. If you really like our efforts, please subscribe to our YouTube channel, which is YSR Academy. Like our video, share the video with your friends, and also please give a thumbs up so as we'll have a more enhanced, more better outcome, more better output, which will be student centric, directed towards you and your academic results. I hope so this module is clear. I would highly request you to please go back, watch the process of DNA replication, watch the initial videos of molecular basis of inheritance, and then I think you'll be good to go, and then you can proceed forward. Next module mein we will talk about genetic code, followed by the process of translation, and then we will take the chapter forward. I hope you guys have understood this video. I'll see you in the next class. Till then, take care and stay safe. Bye.